صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ اطاعتہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے ہیں ایسے ہے جیسے کہ ایک دانہ اس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زائد بھی اضافہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ کا فضل بہت وسیع ہے اور جانتا ہے اس کو جو اضافت کا مستحق ہے، اضافے کا مستحق ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور مال خرچ کہاں کرنا؟ جائز امور میں، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہ سب اللہ کا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ جہاد میں اللہ مال خرچہ کرنا یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، سمجھا؟ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، لاچاروں، دبے کچلے لوگوں، کمزوروں، ضعفاؤں پر خرچہ کرنا بھی کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں خیرات کی ترغیب دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ خرچہ کرنے میں لگتا ہے بظاہر کہ مال گھٹ رہا ہے، لیکن وہ مال گھٹتا نہیں بلکہ حقیقت میں بڑھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 1 روپیہ خرچہ کرنے کا ثواب 700 گنا یا اس سے زائد بھی عطا کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا ان لوگوں کی مثال جو خرچہ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں۔ تو اب یہاں پر مشبہ ہے الذین ينفقون اموالهم، ہے نا، اور کمثل حبۃ جو ہے مشبہ بہ ہے، سمجھا؟ تو مشبہ بہ میں کوئی جوڑ نہیں بن رہا ہے، سمجھا؟ اس لیے کہ مشبہ کیا ہو گیا؟ جاندار اور ذوی العقول، ہے نا، اور مشبہ بہ کیا ہوا؟ دانا، یعنی غیر جاندار، غیر ذوی العقول۔ تو مشبہ بہ میں یکسانیت نہیں ہو رہی ہے، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے، اسی لیے یہ مصنف نے نکالا مثل کے بعد صفت و نفقات، ہے نا، کہ خرچہ کرنے کی مثال۔ تو اب مثل و صفت و نفقات یہ کیا ہو جائے گا؟ مشبہ، اور کمثل حبۃ کیا بن جائے گا؟ مشبہ بہ۔ تو ادھر بھی نفقہ اور ادھر بھی نفقہ، تو دونوں میں مناسبت ہو جائے گی، لہذا کوئی اشکال نہیں رہے گا۔ تو ان لوگوں کے خرچہ کرنے کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں یعنی اس کی اطاعت میں خرچہ کرتے ہیں، چاہے جہاد میں ہو یا کمزوروں، مسکینوں، جہاں جہاں اللہ نے خرچہ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچہ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک دانہ اس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، ایسے ہی ان کے نفقات، ان کے خیرات بڑھ جاتے ہیں 700 گنا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا دیتا ہے، اور اس کا اصل مال کے اندر برکت بھی بہت ہوتی ہے۔ واللہ یضاعف اکثر لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زائد بھی اضافہ کر دیتا ہے لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے۔ یہ سب خلوص پر موقوف ہے، کیا ہے؟ خلوص پر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بہت وسیع ہے اور خوب جانتا ہے جو اضافہ کا مستحق ہے، یعنی کس کو 700 گنا دینا ہے اور کس کے خرچے کو 700 گنا سے بڑھا دینا ہے، اس کے خلوص پر موقوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ آگے دیکھیے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا، جو اپنا مال خرچہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، جو اپنا مال خرچہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، اور پھر جو خرچہ کیے ہیں اس کے بعد احسان نہیں جتاتے ہیں، علی المنفق علیہ، منفق علیہ پر، بقولہ، مثلا یہ کہہ کر کے، قد احسنت الیہ، میں نے اس پر احسان کیا، وجبرت حالہ، اور میں نے اس کی حالت سدھار دی، ولا اذن، اور تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، لہو، اس کو، بذکر ذالک، اس کا ذکر کر کے، الی من، ایسے شخص کے پاس، لا یحب وقوفہ، کہ جس کے مطلع ہونے کو وہ شخص ناپسند کرتا ہے، وغیر ذالک، کا مطلب یعنی اللہ تبارک و تعالی خیرات میں جو اضافہ کرتا ہے اس کے ثواب میں بطور خاص ان لوگوں کے لیے جو اپنا مال تو خرچہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور اس سے وہ صرف اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہیں، خرچہ کرنے کے بعد احسان جتلاتے نہیں ہیں، یہ نہیں کہتے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، اور کیا ہے؟ ولا اذن، اور تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، کا مطلب
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, गरीब गुरबा लोग, समझा, जो मुस्तहिक होते हैं, लोग उनको माल देते हैं और वो ये नहीं चाहते हैं कि इसका पता हमारे किसी और रिश्तेदार को हो जाए, वरना लोग उसको चिढ़ाएंगे तुम फलां से माल लिया है ना। तो ऐसा भी नहीं करते हैं कि माल खर्चा करने के बाद वो किसी ऐसे आदमी को बतला दे, जिक्र कर दे जिस आदमी को बारे में वो ये चाहता है, जो माल लिया है, कि उसको इत्तला न होनी चाहिए, है ना। तो क्या है, एहसान भी नहीं जतलाना है खर्चा करने के बाद, और चर्चा भी नहीं करना है। एहसान भी नहीं जतलाना है और चर्चा भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग को क्या हवाल पोशीदा होते हैं उसके दरमियान और अल्लाह के दरमियान, और शायद किसी को पता चल जाता है तो लोग उसकी इमदाद कर देते हैं। तो वो ऐसा आदमी कभी नहीं चाहेगा कि हमारे इस इमदाद लेने की खबर हमारे किसी और रिश्तेदार को हो जाए, वो कभी नहीं चाहेगा ऐसा, है ना। ये तकलीफ अज़र से मुराद यही है कि जिसको आप इमदाद दे रहे हैं वो इसको सेपरेट रखना चाहता है, राज में रखना चाहता है, उसको राज ही में रखिए, किसी से चर्चा ना कीजिए, और बतौर ख़ास उससे जिस आदमी के इत्तला को वो नागवार समझता है, नापसंद करता है, इसलिए कि वो तानो तशनी करेगा और क्या है, एतराज़ करेगा, है ना। तो फरमाया कि जो लोग अपना माल खर्चा करते हैं और खर्चा करने के बाद एहसान नहीं जताते हैं और तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, तो एहसान न जताने का मतलब यानी वो उसको कहते नहीं है कि मैंने तुम पर एहसान किया या मैंने तुम्हारी हालत को सुधार दिया, तुम क्या थे, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, है ना, ये नहीं करते हैं। या इसी तरह वला अज़न, और तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, यानी मतलब ये है कि उसका चर्चा नहीं करते हैं कि हमने ये दिया वो दिया, या ऐसा नहीं करते हैं। वल्लहुम अजरुहुम सवाब इन्फाक़िहिम, उनके लिए उनका अजर है, उनका खर्चा करने का सवाब है, इंद रब्बिहिम, उनके परवरदिगार के पास। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे आखिरत के अंदर। बात खत्म हुई। क़ौलुम मारूफ़ुन, दो चीज़ आई इसके अंदर, एक खर्चा करना है अल्लाह के रास्ते में, और उसके बाद न एहसान जतलाना है, ना उसको तकलीफ पहुंचानी है, समझा। तकलीफ न पहुंचाने का मतलब ये, तकलीफ पहुंचाने का मतलब एक तो क्या है, बुरा भला नहीं कहना है उसको, गाली गलौज नहीं करना है उसको, और दूसरा ये कि वो जिसके बारे में चाहता है कि हमारा मामला उससे छुपा रहे, वो ना जाने, उसको बतलाना भी नहीं है। होता है आम तौर पर कि लोग एक दूसरे पर खर्चा करते हैं और उसके बाद जब हालत बदल जाती है, दोनों में अगर तनाज़ा हो जाता है, दुश्मनी हो जाती है, तो फिर उस ज़माने की बात, पिछले ज़माने की बात वो उगट के शुरू कर देता है और बयान करना शुरू कर देता है उसके ऐसे लोगों को जिससे उसकी दुश्मनी हो चुकी है, कह रहे फलाने वक्त में हम उसके साथ ये किए थे, फलाने वक्त में उसके साथ ये किए थे। अब तनाज़ा वगैरह के वक्त वो उसको तानो तशनी करना शुरू कर देता है। तो क्या है, खर्चा करके एहसान भी नहीं जतलाना है और खर्चा करने के बाद चर्चा भी नहीं करना है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, क़ौलुम मारूफ़ुन कलामुन हसन वरद्दुन अला साइल जमीलुन, और बेहतरीन बात क्या है, मीठी बात और साइल को जवाब दे देना बेहतर है। साइल को कलाम हसन वरद्दुन अला साइल, और साइल को लौटा देना, मीठी बात करना, और वमग़फ़िरतुन लहू फ़ी इल्हाहिही, और साइल के जोर ज़बरदस्ती में उसको माफ़ कर देना बेहतर है ऐसे सदक़े से जिसके बाद एहसान जतलाया जाए, समझा। क्या मतलब, अगर कोई साइल आता है, आने के बाद वो इल्हा जारी करता है, इसरार के साथ मांगता है, लेकिन फिर भी आप उससे माफ़ी मांगते हैं कि भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, हमारे पास नहीं है, समझा। तो साइल को न देना, समझा। अगर कोई मजबूरी है, साइल का हक है, वो मांग सकता है। अगर साइल मांगता है, आपके पास नहीं है, तो उससे माजरत कर लेना, उससे माफ़ी मांग लेना, मीठी बोल देना, ये बेहतर है मुकाबला इसके कि उसको पैसा दीजिए साइल को और एहसान जतलाइए, है ना। तो पैसा दे करके, खर्चा कर करके एहसान जतलाने से बेहतर है कि साइल आपके घर से वापस चला जाए और आप उसको गाली गलौज न कीजिए, माफ़ी मांग दीजिए, वो साइल चला जाए, ये बेहतर है। क्या है, तो फरमाया कलामे हसन यानी मीठी बात, वरद्दुन अला साइले, और साइल को लौटा देना, वापस कर देना, समझा। यानी साइल को सवाल के जवाब में मीठी बात करना, साइल को सवाल के जवाब में मीठी बात करना। वमग़फ़िरतुन, और साइल को माफ़ कर देना, किस चीज़ में, इसरार के साथ, यानी देबे करूँ, समझा।
बहुत सारे लोग आते हैं जो दरवाजे पर इस तरह बैठ जाते हैं, जब तक लेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं, है ना। तो उस मौके पर उसके इसरार को माफ़ कर देना, है ना, उसको दुरुस्त बात नहीं कहना, गाली गलौज नहीं करना, धक्के मार के नहीं भगाना, है ना, उसको माफ़ कर देना। तो साइल के इसरार को माफ़ कर देना और साइल को लिए बेहतरीन बात बोलना, है ना। अगर है तो दीजिए, ना है तो माफ़ी मांग लीजिए। क्या है ये बेहतर है ऐसे सदक़े से जिसके बाद एहसान जतलाना हो, जिसके बाद तकलीफ हो, है ना। यानी एहसान जतला करके वतायिरुन लहु बिस्सवाल, और उसको सवाल का आर दिला करके, है ना, समझा। यानी खर्चा करने के बाद एहसान जतलाना या खर्चा करने के बाद उसको आर दिलाना, अरे तुम क्या थे, तुम ऐसे थे, तुम ऐसे थे, हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो ये करना क्या है, और ये कब होता है, आमतौर पर जब क्या है झगड़ा उगड़ा होता है, तो उस मौके पर लोग एक दूसरे पर एहसान जतलाते हैं, हमने ये किया था, हमने ये किया था, हमने ये किया था। तो ये क्या इंतहाई मज़मूम अमल है। क्या है ये इंतहाई मज़मूम अमल है, अच्छा अमल नहीं है, इससे इंसान को एहतराज़ करना चाहिए, है ना। तो ऐसे काम करने, यानी खर्चा करने के बाद एहसान जतलाना, खर्चा करने के बाद तकलीफ पहुंचाने से बेहतर है कि खर्चा ही ना कीजिए। क्या है, तो एहसान ना जतलाइएगा बाद में। वल्लाहु गनिय्युन अन सदक़तिल इबाद, और अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है बंदों के सदक़े से। हलीमुन, और बुर्दबार है बेताखीरिल उक़ूबति अनिल मान्न वल मूज़ी, और सज़ा को ताख़ीर करके एहसान जतलाने वाले और तकलीफ पहुंचाने वाले से। यानी तकलीफ पहुंचाने वाला, समझा, किसको, जिसको पर खर्चा किया, समझा। साइल को तकलीफ पहुंचाने वाला, या साइल की पोशीदा बातों का चर्चा करने वाला, या साइल को क्या है सवाल पूरा करने के बाद उस पर एहसान जतलाने वाला, है ना। तो ये अमल इतना संगीन है कि अल्लाह ताला दुनिया ही के अंदर सजा दे देता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बुर्दबार है, इसकी सजा को क्या है रोके रखता है, ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम अय उजूरहा बिल मन्नि वल अज़ा, ईमान वालों तुम अपने सदक़ात को यानी उसके अजर को एहसान जतला करके और तकलीफ पहुंचा करके बातिल न करो, समझा। यानी अगर कोई आदमी सदका करता है, खैरात करता है किसी गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों और दबे कुचले लोगों पर, समझा, और फिर उसके बाद वो एहसान जतला देता है या उसके बाद उसको तकलीफ पहुंचाता है, ऐसी बात कहता है जो उसके दिल में लग जाए, तो क्या है, इससे उसके सदक़े का अमल क्या हो जाता है, सदक़े का अजर बातिल हो जाता है, आखिरत के अंदर उसको कोई अजर नहीं मिलेगा। तो ईमान वालों तुम अपने सदक़ात को यानी सदक़े के अजर को बातिल न करो एहसान जतला करके और तकलीफ पहुंचा करके। कल्लज़ी, उस शख्स की तरह, कय्युतार नफ़क़तिल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नास, उस शख्स के खर्चा करने की तरह जो अपना माल खर्चा करता है लोगों को दिखलाने के लिए, और वो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखता है, और वो मुनाफिक है, और वो क्या है, मुनाफिक है। तो जिस तरह मुनाफिकीन दिखलाने के लिए अपना माल खर्चा करते हैं, अल्लाह के का है अल्लाह के रास्ते में दिखलाने के लिए, रियाकारी के लिए, ऐसे ही अगर कोई आदमी अपना माल खर्चा करता है और खर्चा करने के बाद एहसान जतलाता है और तकलीफ पहुंचाता है, तो दोनों बराबर हो गया, दोनों को कोई अजर नहीं मिलेगा, है ना। मुनाफिक को भी कोई अजर नहीं और एहसान जतलाने वाले को भी कोई अजर नहीं मिलेगा। यह ऐसे ही है जैसे कि एक चिकना पत्थर, उस पर मिट्टी हो, फासाबहु वाबिलुन, और उस पर शदीद बारिश हुई हो, फतरकहु सल्दा, और उसको बिल्कुल प्लेन कर दिया हो, ला शैअ अलैहि, उस पर कोई मिट्टी का असर नहीं, कि एक संगे मरमर है और उस पर मिट्टी डाल दीजिए, और मिट्टी डालने के बाद बारिश होगी तो सारा पानी जब गिरेगा, तेज बारिश जब होगी तो पत्थर पूरा क्या हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, मिट्टी नीचे धुल करके चली जाएगी। तो इन लोगों की मिसाल जो अपना माल खर्चा करते हैं, एहसान जतला देते हैं, अपना माल खर्चा करते हैं उसके बाद तकलीफ पहुंचा देते हैं, या अपना माल खर्चा करते हैं रियाकारी के लिए, दिखलाने के लिए, तो ऐसे ही जैसे कि पत्थर पर मिट्टी बारिश के वक्त नहीं ठहरती है, ऐसे ही इनका माल गया अकारत और आखिरत के अंदर इनका कोई अजर नहीं है। ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू, वो ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू, कि वो कादिर नहीं है किसी चीज़ पर उसमें से जो उन्होंने किया है, जो इस्तिनाफ है। ला यक़दिरूना इस्तिनाफ़ुन लिबयान मिसलुल मुनाफ़िक़िल मुनफ़िक़ रियाअन, और ये ला यक़दिरूना जो है ना, ये जुमला मुस्तानफ़ा है, किस चीज़ का बयान है, मुनाफिक का, जो मुनाफिक के खर्चा करने का जो जिक्र है ना, उसका बयान है। ये क्या मतलब
کہ उस मुनाफिक की मिसाल जो रियाकारी के लिए खर्चा करता है ना, उस मुनाफिक की मिसाल जो रियाकारी के लिए खर्चा करता है ऐसे ही है जैसा कि गुजरा है ना। वह जुमिया ज़मीर बेएतिबार मानल लदी, और ज़मीर को जमा लाया गया अल्लदी के माने के एतबार से। ला यक़दिरून है ना, तो ला यक़दिरून में जो हम ज़मीर है जमा मुज़क्कर गायब का सेगा है, हम ज़मीर है, तो ये ज़मीर का मर्जा कौन है? अल्लदी। क्या है? अल्लदी। इस ज़मीर का मर्जा अल्लदी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लदी तो मुफरद है और ला यक़दिरून जमा है, तो जवाब दिया क्या? माने के एतबार से। किसके एतबार से? माने के एतबार से। कहाँ गया? अल्लदी युनफिक़ मालहु रिया अन्नास है ना, कल्लदी युनफिक़ मालहु रिया अन्नास। तो अल्लदी एक आदमी खर्चा करने वाला नहीं होता, खर्चा करने वाले बहुत सारे आदमी होते हैं। तो अल्लदी लफ्ज़ में वाहिद है, लेकिन यहाँ पर मानन क्या है? जमा है, तो उसी एतबार से ला यक़दिरून लाया। क्या लाया? ला यक़दिरून जमा। तो ला यक़दिरून अला शैइन मिम्मा कसबू, वो कुदरत नहीं रखते किसी चीज़ पर जो उन्होंने किया है। अमिलू यानी जो उन्होंने अमल किया। ला यजिदून लहू सवाबन फिल आखिरा, कि वो उसका सवाब आखिरत के अंदर नहीं पा सकते। कमा ला युजदु अला सफ़वानी, जैसा कि चिकने पत्थर पर कोई चीज़, मिट्टी की कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। काना अलैहि लिइज़हाबिल मतर, जो उस पर हो बारिश के उसको ले जाने की वजह से। तो जिस तरह पत्थर सफ़ेद या क्या चिकने पत्थर पर मिट्टी नहीं ठहरती है, ऐसे ही ये लोग क्या है? कौन लोग? जो रियाकारी के लिए खर्चा करते हैं या खर्चा करने के बाद एहसान जतलाते हैं, तो ये इन लोगों को भी आखिरत के अंदर कोई अज्र मिलने वाला नहीं है। समझा? वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह तबारक व तआला काफिर लोगों को हिदायत नहीं देता, काफिर लोगों को हिदायत नहीं देता। तो ला यक़दिरून जो है क्या हो गया? मुस्तानफा, जुमला मुस्तानफा हो जाएगा। ला यक़दिरून अला शैइन मिम्मा कसबू, पूरा जुमला क्या हो जाएगा? मुस्तानफा हो जाएगा, नया जुमला है ना। और ये माक़बल के लिए वजाहत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माक़बल में जो अल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिया अन्नास है ना, उसकी वजाहत वाला जुमला हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात कि ला यक़दिरून जब बयान है माक़बल का, तो माक़बल में तो अल्लज़ी है, समझा, और मुफ़रद है, और ला यक़दिरून क्या है? जमा है। तो उसी का जवाब दिया कि अल्लज़ी मुफ़रद है, लेकिन मानन क्या है? वो जमा के माने में ले लेंगे, और उसी माना का एतबार से ला यक़दिरू के बजाय ला यक़दिरून कहेंगे। क्या कहेंगे? ला यक़दिरू के बजाय ला यक़दिरून। मसलु नफ़क़ातिल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ तलबि मरज़ातिल्लाहि व तस्बीतन मिन अनफ़ुसिहिम तहक़ीक़न लिस्सवाबि अलैहि बिख़िलाफ़िल मुमिनीना الذين لا يرجونه لإنكارهم له ومن ابتدائية كمثل حبة بستان بربوة بضم الراء وفتحها مكان مرتفع مستو أصابها وابل فآتت أكلها بضم الكاف وسكونها ثمرها زيفين مثل ما يثمر غيرها فإن لم يصبها وابل فطل مطر خفيف يصيبها ويكفيها لارتفاعها المعنى تصبر وتزكو كسر المطر أم قل فكذلك نفقات من ذكر تزكو عند الله كسرت أم قلت والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير. क्या मतलब कि जो लोग अल्लाह की रजामंदी के लिए अपना माल खर्चा करते हैं, उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि बाग ऊपर हो। क्या हो? बाग ऊपर हो और हमवार ज़मीन में, समझा। तो वहाँ बारिश अगर तेज़ होती है तो भी क्या है? बाग खूब फलता है, और बारिश अगर हल्की होती है तो भी बाग क्या है? खूब फलता है। तो कश्मीर की ज़मीनें हमारी ज़मीन से, हिंदुस्तान के बिहार की ज़मीन से बहुत ऊंची हैं, समझा। तो कश्मीर में जो बागात हैं खूब फलते कि नहीं फलते हैं? तो ऊंचाई पर जो बागात होता है पहाड़ वगैरह पर, तो वो बाग खूब फलदार होता है। बारिश कम होगी तो भी, और बारिश ज़्यादा होगी तो भी, है ना। तो अब देखो मसलुल नफ़क़ातिल लज़ीना, यहाँ भी वही बात है, मसलुल नफ़क़ात निकाल दिया। उन लोगों के खर्चा की मिसाल जो अपना माल खर्चा करते हैं अल्लाह की रज़ामंदी को तलब करने के लिए, व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, और अपने आप को साबित कदम रखते हुए, चाहे अपने लिए बाइसे सवाब समझते हुए, तहक़ीक़न लिस्सवाब यानी सवाब के हुसूल के खातिर, बिख़िलाफ़िल मुमिनीना बरख़िलाफ़ उन मुनाफ़िक़ीन के, अल्लज़ीना ला यरजूनहु जो उसकी उम्मीद नहीं रखते हैं, लिइनकारिहिम लहू इसलिए कि वो लोग क़यामत का इनकार करते हैं,
समझा। वमिन इब्तिदाइयतुन, और मिन इब्तिदाइया है, मिन अनफुसिहिम में जो है ना मिन इब्तिदाइया है। कमसल जन्नतिन, उस बाग की सी है, बिरबवतिन, कमसल जन्नतिन बिरबवतिन, जो ऊंचाई पर हो, बिरबवतिन राके जम्मे के साथ और उसके फतहे के साथ, राके जम्मे के साथ और उसके फतहे के साथ, रुबवतिन है ना, रुबवा और रबवा। मकानुन मुर्तफाउन, मकान मुर्तफा, मुस्तवियुन बराबर, यानी रबवा या रुबवा कहा जाए किसको, ऐसी जगह को जो ऊंचाई पर हो और हमवार हो, है ना। असाबहा वाबिलुन, कि बारिश उस पर आई हो, फातत, और बारिश ने उगाया हो, दिया हो, उकलहा, वो बाग उगाता हो, उकलहा अपना फल, बेजम्मिल काफी व सुकूनहा, काफ के जम्मे और उसके सुकून के साथ, उकला है ना, काफ के जम्मे और उसके सुकून के साथ, उकुलहा और उकलहा, मतलब क्या है, समरहा यानी अपना फल, ज़ेफ़ैन दो गुना, मिसलै मा युस्मिरु गैरहा, बमुकाबला उसके जो दूसरा बाग फल देता है। यानी एक बाग ऊंचाई पर है और एक बाग नीचे है, तो ऊंचाई का जो बाग होगा, बारिश अगर होगी तो वो बाग दो गुना फलेगा बमुकाबला नीचे वाले बाग के, है ना। फ़इल्लम युस्तिबहा वाबिलुन फतल, और अगर उस पर बारिश न आई हो तो हल्की फल्की बारिश भी क्या है, काफ़ी हो जाती है। मतलुन खफीफुन युसीबुहा, तो हल्की फल्की बारिश जो उसको लगती है वो यकफिया, और काफ़ी हो जाती है, लिइर्तिफाइहा, इसलिए कि वो ऊंचाई पर है। मतलब क्या है, अलमाना तुस्मिरु व तस्कु, कि वो बाग फल देता रहता है और बढ़ता रहता है। कसुरल मतरो अम कल्ला, बारिश ज़्यादा हो या कम, फ़कदालिका नफ़क़ातु मन ज़ुकिरा, और ऐसे ही उन लोगों का खर्चा है जो जिक्र किया गया। तज़्कु इंदल्लाहि, बढ़ता रहता है अल्लाह के नज़दीक। कसुरत अम कल्लत, खर्चा कम करें या बेसी, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने बाइसे सवाब समझते हुए मुखलिसीन लोगों के खर्चा करने को तशबीह दिया, किससे, ऐसे बाग से जो ऊंचाई पर हो, है ना। तो ऊंचाई वाला बाग क्या है, ज़्यादा फलदार होता है बमुकाबला दूसरे बागों के, है ना। तो ऐसा आदमी जो अपना खर्चा करता है अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, वो दूसरे तरह के खर्चा करने वालों से ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इसका अज्र क्या है, बढ़ता रहता है। जिस तरह ऊपर वाला बाग बढ़ता रहता है, बारिश कम होगी तो भी बाग फलेगा नीचे वाले से दो गुना, बारिश अगर हल्की फुल्की होगी तो भी काफ़ी हो जाएगा उसके लिए। तो ऐसे ही ये आदमी थोड़ा खर्चा करे या बेसी खर्चा करे, अल्लाह तबारक व तआला इसको अज्र अता फरमाता है, और 700 गुना से कई गुना भी अल्लाह ताला अता फरमाएगा, है ना। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अमाल से बाखबर है, तुमको बदला देगा। तो गोया कि इसमें खुलूस के साथ, इस आयत में खुलूस के साथ खर्चा करने को तशबीह दिया गया, किससे, ऊंचाई के बाग से, किससे, ऊंचाई के बाग से, कि वो बाग हमेशा फल देता है और दूसरे बागों के मुकाबले में दो गुना देता है। तो ऐसे ही जो आदमी अपना खर्चा करते हैं अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की रज़ा के लिए, ऐसी दुनिया के अंदर भी उनको बदला मिलता है और आखिरत के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला बदला अता फरमाएंगे। ये खुलासा है। अयवद्दु अयुहिब्बु अहदुकुम अन तकून लहु जन्नतुम मिन नखीलिन, क्या तुम में से कोई चाहता है कि उसका एक बाग हो जाए खजूर का, व अनाबिन, और अंगूर का, तजरी मिन तहतिहा अल-नहार, कि उसके नीचे नहरें चलें, लहू फीहा मिन कुल्लि थमर, कि उसके अंदर हर किस्म के फल हों, क़द असाबहुल किबरु, और इस हाल में कि वो बुढ़ापा उस पर आ गया हो, फ़ज़अफ़ा अनिल कसबे, और वो कमाई से कमज़ोर हो गया, वलहू ज़ुर्रियतुन ज़ुअफ़ा, और उसकी छोटी छोटी औलादें हों, ला यक़दिरून अलैहि, जो उस पर कुदरत नहीं रखते बाग को ठीक ठाक करने पर, कमाने माने पर। फ़असाबहा इअसारुन, अचानक उस बाग पर बगोला आ गया हो, रीहुन शदीदतुन फ़ीहि नारुन, यानी ऐसी हवा जिसमें आग हो, फ़अहतरक़त, और उसने जला दिया उस बाग को, फ़फ़क़दहा, तो उसने बाग को गुम कर दिया, गुम पाया, अहवजा मिम्मा मा कान इलैहा, उस वक्त जबकि उसको उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, बक़िया हुआ व औलादुहु अजज़तन, और वो और उसकी औलादें आजिज़ रह गई, मुतहय्यरीना, हैरत ज़दा रह गई, ला हीलत लहुम, उनके पास कोई तदबीर नहीं, समझा। यानी कि क्या है, एक आदमी है, तशबीह दे रहा अल्लाह तबारक व तआला, समझा रहा है कि अल्लाह के रास्ते में अल्लाह ही के लिए खर्चा करूँ, है ना, और दूसरा कोई मकसूद नहीं होना चाहिए। कि एक आदमी है, जो आदमी बाग लगाया हुआ है, समझा, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है,
اور वो बाग में उसने मेहनत किया है, बाग फल देता रहता है, समझा, और उसी से उसका रोजगार चलता है, गुजर बसर होता है। अब वो बूढ़ा हो गया, इंतहाई कमज़ोर हो गया, खेती पथारी कर नहीं सकता, बाग में जा नहीं सकता है, समझा। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये काम नहीं कर सकते, पटौनी टोने काम नहीं कर सकते हैं, समझा। अब क्या हुआ कि इस बुढ़ापे की हालत में, जबकि उसके पास छोटे छोटे बच्चे भी हैं, काम करने से वो माजूल हो गया है, ऐसे वक्त में बाग के फलने की और ज़्यादा ज़रूरत है, माल का वो और ज़्यादा मोहताज है। ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक वो उस बाग पर अगर कोई बगोला आ जाए या उस बाग में आग लग जाए और पूरा बाग जल जाए, पूरी खेती जल जाए, तो उस वक्त क्या हालत होती है उस आदमी की, जिस आदमी की वो ज़मीन थी, जिस आदमी का वो खेत था या जिस आदमी का वो बाग था, क्या हालत होगी उसकी, है ना। तो वही हाल है उसका जो अल्लाह के रास्ते में खर्चा करते हैं, लोगों पर खर्चा करते हैं और अल्लाह की रजामंदी के लिए नहीं बल्कि किसी और मकसद के लिए खर्चा करते हैं। तो उस वक्त इनका खर्चा किया हुआ इनको काम नहीं देगा जिस वक्त इनको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। क्या तुम में से कोई ये चाहता है, समझा रहा अल्लाह ताला, क्या कोई चाहता है कि ऐसा हो जाए? कोई नहीं चाहता है ऐसा हो, है ना। जब कोई नहीं चाहता है कि ऐसा हो, हर आदमी चाहता है कि बुढ़ापे में भी हमारा सहारा कुछ रहे और हमारी आल औलाद का कुछ सहारा रहे, समझा। तो कोई जब नहीं चाहता है तो ऐसे ही तुम लोग जब अल्लाह के रास्ते में खर्चा करते हो तो उससे कोई दूसरा मकसूद नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका मकसूद अल्लाह की रज़ा होना चाहिए, है ना। तो क्या तुम में से कोई ये चाहता है कि उसके पास खजूर और अंगूर का बाग हो जिसके नीचे नहरें जारी हों, उसमें हर किस्म का फल हो, और बुढ़ापा उसको आ जाए, कमाने से वो माजूर हो जाए, उसकी छोटी छोटी औलादें हों जो उस पर कुदरत न रखती हों, अचानक उस पर तेज बगोला आ जाए जिसमें आग हो और उसको जला दे बाग को उस वक्त जबकि उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और वो आदमी और उसके छोटे छोटे बच्चे आजिज़ और हैरान रह जाएं, कोई चारा ना हो उसके पास। ये तमसील है उस खर्चे की जो दिखलाने के लिए होता है और एहसान जतलाने वाले के खर्चा करने की, फी दिहा बिहा वादमिहा नफ़िहा, कि वो एहसान करने वाला एहसान करके अपने माल को बर्बाद कर देता है ना, या तकलीफ पहुंचा करके अपने माल को जो खर्चा किया है बर्बाद कर देता है, या दिखला करके रियाकारी के वास्ते जो अपना माल खर्चा करता है वो उसको क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। अहवज मा का यकूनु इलैहा फिल आखिरत, आखिरत में जबकि उसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी कि कहाँ से कुछ नेकी का सवाब मिल जाए, कहाँ से कुछ सवाब हमारे तराजू में चला जाए, है ना। तो उस वक्त सबसे ज़्यादा मोहताज होगा नेकी का, और उस वक्त ही ये नेकी उसको नहीं मिलेगी, हालांकि दुनिया के अंदर इसने बहुत खर्चा किया, है ना। अल इस्तिफाम बेमाना नफ़ी, इस्तिफाम नफ़ी के माने में, यानी कोई नहीं चाहता है ऐसा, है ना। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, वल रजुलिन अमिल बित्ताअत, ये मिसाल उस आदमी की है जो नेकी किया, सुम्मा बुइसा लहु शैतान, फिर उसके पास शैतान आ गया, मुकर्रर हो गया, फामिला बिल मासी, और वो गुनाह करने लगा, हत्ता अगरक आमालहु, यहाँ तक कि वो गुनाह के अमाल में डूब गए, उगरका आमालहु, यहाँ तक कि उसके अमल डूब गए गुनाहों में। कज़ालिका कमा बुय्यिना मा ज़ुकिरा, और ऐसे ही जैसा कि मज़कूरा चीज़ों को बयान किया गया, युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए आयात को बयान करता है ताकि तुम इबरत हासिल करो। यानी इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बकौल कि ये तशबीह उन लोगों की है जो नेक करते हैं, नेकी करते हैं, चिल्ला उल्ला लगा करके आते हैं, कुछ दिन ठीक ठाक होता है, फिर क्या होता है, वो गुमराह हो जाते हैं, है ना, और फिर वो बुराई में लगे रहते हैं, बुराई में डूब जाते हैं, और कहाँ गई नमाज, कहाँ गया रोज़ा, सब छूट जाता है ना। तो ये उन लोगों की मिसाल है कि उनका अमल क्या हो गया, अकारत चला गया, और क्या है, इसको आखिरत के अंदर जब ये अमल सवाब का सबसे ज़्यादा मोहताज होगा, इसको सवाब के लिए तरस जाएगा, है ना। और जो सही मतलब है उसका ऊपर जिक्र किया गया, समझा, महक़िक़ाना मतलब कि जो लोग अपना माल खर्चा करते हैं दिखलाने के लिए, एहसान जतला देते हैं खर्चा करने के बाद, या तकलीफ पहुंचाते हैं जिस पर खर्चा किया है उसको, तो फिर क्या है, तो क्या है, आखिरत के अंदर इसका कोई अज्र नहीं मिलेगा, जबकि आखिरत में इस अज्र के मिलने का ये ज़्यादा मोहताज होगा मुकाबला दुनिया के। तो गोया कि जिस तरह दुनिया में कोई आदमी खेती बाड़ी के सिलसिले में ये नहीं चाहता है कि हमारी खेती बाड़ी, हमारा बाग बर्बाद हो जाए उस वक्त, जबकि हम बूढ़े हो जाएं, हमारी छोटी छोटी औलादें हों, तो उस वक्त आमदनी की कोई सूरत नहीं होती है, वही खेत खलियान और बागात सहारा रहता है। उस मौके पर अगर वो भी छिन जाए, कोई आदमी इसको नहीं चाहता है। तो ऐसे ही खर्चा करने, अल्लाह के रास्ते में फ़र्क़ खैरात करना,
کرنے کے بعد احسان جتلانا نہیں چاہیے، اور خیر خیرات کرنے کے بعد تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، یا خیر خیرات ریاکاری کے لیے نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، تو آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 1 روپیے کے بدلے میں 700 روپیہ یا اس سے زائد عطا فرمائے گا۔ ان لوگوں کے خرچہ کی مثال جو اپنا مال خرچہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، یعنی اس کی اطاعت میں، ایسے جیسے کہ ایک دانہ اس نے 7 بالیاں اگائی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، ایسے ہی ان کا خرچہ کرنا بڑھتا رہتا ہے 700 گنا سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زائد اضافہ کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، اور اللہ کا فضل بہت وسیع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اضافے کا مستحق ہے۔ جو لوگ خرچہ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں، اور پھر جو خرچہ کیا ہے پھر ثم لا یتبعون، اور پھر جو خرچہ کیا ہے اس پر احسان نہیں جتلاتے ہیں، یعنی خرچہ کیے ہوئے شخص پر یہ کہہ کر کے احسان نہیں جتلاتے ہیں کہ میں نے اس پر احسان کیا، میں نے اس کی حالت کو درست کر دیا، وجبرتو حالہ، تو میں نے اس کی کیا ہے، جبر تو کہیں گے مرہم پٹی کرنا، درست کر دینا، تو میں نے اس کی حالت کو درست کر دیا، اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کا ذکر کر کے اس شخص کو جس کو مطلع ہونے کو یہ شخص ناپسند کرتا ہے، وغیرہ ذالک، اور ان کے لیے ان کا اجر ہے، ان کے خرچہ کرنے کا ثواب ہے ان کے پروردگار کے پاس، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ آخرت کے اندر غمگین ہوں گے۔ بہترین بات کرنا اور سائل کو لوٹا دینا اور اس کے اصرار میں اس کو معاف کر دینا بہتر ہے ایسے صدقے سے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے، یعنی احسان جتلایا جائے یا آڑ دلایا جائے اس کو سوال کرنے پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے صدقے سے بے نیاز ہے اور بردبار ہے، احسان جتلانے والے اور تکلیف دینے والے کے سزا کو تاخیر کر دیتا ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنے صدقات کو یعنی اس کے اجر کو باطل نہ کرو، احسان جتلا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچہ کرتا ہے دکھلانے کے واسطے، اس شخص کے خرچے کے باطل کرنے کی طرح جو اپنا مال خرچہ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے اور وہ منافق ہے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ چکنا پتھر، اس پر مٹی ہو اور بارش اس پر سخت بارش اس پر آ پڑی ہو اور اس پتھر کو بالکل صاف ستھرا چھوڑ دیا ہو، اس پر کوئی چیز موجود نہ ہو۔ وہ لوگ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، یہ جملہ مستانفہ ہے اور یہ بیان ہے مثل المنافق کا، یعنی اس منافق کی مثال جو خرچہ کرتا ہے ریاکاری کے لیے، اور ضمیر کو جمع لایا گیا الذی کے معنی کے اعتبار سے، یعنی وہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کہ جو انہوں نے کیا ہے اس میں کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، اے لا یجدون لہ ثوابا فی الآخرہ، یعنی وہ لوگ اس کا ثواب آخرت کے اندر نہیں پائیں گے، جیسا کہ نہیں پایا جاتا ہے چکنے پتھر پر مٹی کی کوئی چیز جو اس پر تھی بارش کے اس کو بہا دینے کی وجہ سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ان لوگوں کے خرچہ کرنے کی مثال جو اپنا مال خرچہ کرتے ہیں اللہ کی رضامندی طلب کرنے کے لیے اور اپنے نفس کو اور وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ اور ثواب حاصل کرنے کے لیے، تحقیق للثواب علیہ، ثواب کے وجود کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، برخلاف ان منافقین کے جو ثواب کی امید نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ منافقین تو ثواب کا انکار کرتے ہیں یا قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اور من ابتدائیہ ہے، کس میں ابتدائیہ ہے؟ من انفسہم، اس دانے اس باغ کی سی ہے جو اونچائی پر ہو، را کے ضمے کے ساتھ اور اس کے فتح کے ساتھ، ربوہ اور ربہ، بلند مکان اور ہموار مکان، اس پر بارش آ چکی ہو اور وہ باغ اپنا پھل دیتا ہو، اکل اور اکل، یعنی کاف کے ضمے کے ساتھ اور کاف کے سکون کے ساتھ، ثمر کے معنی میں، وہ باغ اپنا پھل دیتا ہو 2 گنا، مثلی ما یثمر غیرہا، کہ اس کے مقابلے میں 2 گنا جو دوسرا باغ دیتا ہے اپنا پھل۔ بس اگر اس پر بارش نہ آئی ہو تو ہلکی پھلکی بارش بھی، تیز بارش نہ آئی ہو تو ہلکی پھلکی بارش بھی کافی ہے جو اس کو لگے، اور اس کے بلند ہونے کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ وہ باغ پھلتا رہتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے، بارش زیادہ ہو یا کم۔ ایسے ہی ان لوگوں کا خرچہ ہے جو مذکور ہوئے، جو ذکر کیے گئے، وہ مال بڑھتا ہے اللہ کے پاس، چاہے وہ مال کم ہو یا زیادہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، تم کو بدلہ دے گا۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس باغات ہوں کھجور کے اور انگور کے، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں اور اس میں ہر قسم کے پھل ہو، اور بڑھاپا اس پر آ چکا ہو، کمانے سے وہ معذور ہو گیا، اس کی چھوٹی چھوٹی اولادیں ہوں جو اس پر قدرت نہیں رکھتی کمانے پر، اور اچانک تیز ہوا آ چکی ہو اس پر جس میں آگ ہو اور باغ کو جھلسا دیا ہو، ہلاک کر دیا ہو،
ای فقدہا یعنی وہ اس کو گم کر دیا اس وقت جس وقت اس کو سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور وہ رہ گیا اور اس کے چھوٹے بچے رہ گئے عاجز اور حیران، ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں۔ یہی مثال ہے ریاکار کے اور احسان جتلانے والے کے خرچہ کرنے کی، فی ذہابہا کہ اس خرچہ کرنے کے ضائع ہونے میں اور نفع نہ دینے میں، اس وقت جب کہ اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی آخرت کے اندر۔ اور استفہام نفی کے معنی میں ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ مثال اس شخص کی ہے جو نیک عمل کیا، پھر شیطان اس پر مقرر ہو گیا اور گناہ کرنے لگا یہاں تک کہ وہ اپنے اعمال کو ڈبو دیا۔ ایسے ہی جیسا کہ مذکورہ چیزیں بیان کی گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، عبرت حاصل کرو۔